Hello, dear friends. Vande Mataram. Welcome to a new lecture of the alcohol, phenol, and the ether. Up to our previous lecture, we have learned about alcohol, phenol, and the starting of the ether. How to make ether, different making of the ether, included for the board exam, as well as some extra preparation that we have already learned. Now, in this lecture, we are going to learn physical and the chemical properties of the ether. I repeat, physical and the chemical properties of the ether. तो उसमें से जो फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज आउट ऑफ सिलेबस पर्टिकुलर इस साल के लिए ये एनसीईआरटी का पोर्शन नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टी में भी दोस्तों दो अलग अलग पोर्शन है। इसमें से एक पोर्शन ए रहेगा दैट इज द पार्ट ऑफ द एनसीईआरटी। सेकंड इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन व्हिच इज एक्चुअली नॉट अ पार्ट ऑफ द एनसीईआरटी बट स्टिल we are going to learn this NCERT portion for this year also as well as out of the syllabus but from the NCERT we only because of the MCQ of the competitive exams। इन दोनों में से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एमसीक्यू हो सकते हैं, वो भी पढ़ेंगे। राइटिंग में आपको ये जो ये केमिकल प्रॉपर्टीज में टाइप ए होगी उसको मैं बताऊंगा विच इज एक्चुअली टाइप ए। उसको आपको राइटिंग में भी ध्यान में रखना है और ये दोनों पोर्शन को फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन दी एरोमेटिक ईथर दैट इज ओनली फॉर द एमसीक्यू। सो उसको राइटिंग के लिए दोस्तों इतना ज्यादा टेंशन नहीं होना है, ठीक है। So we are starting with the physical properties. As we discussed, physical property is actually not a part of the board exam. So just for MCQ or second thing, we are going to discuss only and only NCERT in this lecture. ये lecture में दोस्तों only NCERT ही discuss करने जा रहे हैं। So physical property. The CO bonds in ether are polar and thus ether have net dipole moment. CO bond is polar. How can we say CO bond is polar? Because the higher electronegativity of the oxygen. Oxygen is slightly negative at the same time carbon is slightly positive. और यहाँ पे दोस्तों because of this polarity net dipole moment is there. The weak polarity of ether do not appreciably affect their boiling points which are comparable to those alkane and the comparable to molecular masses but are much lower than the boiling point of the alcohol as shown in the following cases। ये सेंटेंस इसको समझ में नहीं आया है, ये नेक्स्ट पॉइंट से दोस्तों आप इजीली समझ जाओगे। दिस इज नॉर्मल पेंटेन एंड द बॉइलिंग पॉइंट in the Kelvin is 309.1। this is I repeat normal pentane। at the same time this is ethoxyethane। नॉर्मल पेंटेन और इथॉक्सीथेन में दोस्तों अगर आप मोलेकुलर वेट कैलकुलेट करोगे नियर अबाउट मिलेगा, नॉट एग्जैक्टली द सेम बट नियर अबाउट मोलेकुलर वेट मिलेगा। हियर यू कैन सी boiling point of the alkane is 309.1 but in the ethoxyethane boiling point is 307.6। so here polarity is there, there is no doubt of the polarity carbon oxygen carbon, ये carbon oxygen carbon, but still there is no strong intermolecular forces there। weak intermolecular force like alkane और इन दोनों में almost equal weak molecular forces। so इन दोनों के melting point and the boiling point are down less और ये almost equally कह सकते हैं because slight molecular weight difference is also there। so slight difference in the boiling point here। so both have low intermolecular attraction forces like London forces। sir here is the polarity, यहाँ पे polarity है but still polarity है but still the attraction is London force or weak intermolecular forces। क्यों? बिकॉज कार्बन ऑक्सीजन कार्बन के बाद फिर से सेकंड जो एटम है उसमें भी फिर से कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ही है। सो दो नेगेटिव पोल के बीच में इतना अट्रैक्शन नहीं हो सकता जितना नेगेटिव पॉजिटिव में होता है। लाइक दिस हियर यू कैन सी ब्यूटेन 1 again nearly the same molecular weight to the normal pentane and the ethoxyethane। you can calculate आप इसका molecular weight कैलकुलेट करके वेरीफाई कर सकते हो। इन दोनों की कंपैरिजन में ये भी नियरेस्ट है और ये दो अगर हम बात करें यहाँ पे इथॉक्सीथेन एंड ब्यूटेन ऑलमोस्ट इक्वल है। इन दोनों में जितने कार्बन जितने ऑक्सीजन जितने हाइड्रोजन है वो आर सेम। so molecular weight is also same but you can see the boiling point in the Kelvin is much more higher than the ethoxyethane। why? because here positive negative attraction OH bond polar होगा O minus
O minus and the H plus. So here because of this polarity, attraction of O and H minus is there. Clear? Okay. So यहाँ पे दोस्तों because of polarity, I repeat because of polarity, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन ज्यादा होगा. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ये कुछ ज्यादा ही तरह का होगा दोस्तों. कौन सा हो सकता है? हाइड्रोजन फोर्स बन सकता है. हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पे फॉर्मेट हो सकता है. सो अल्कोहल हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन ईथर. और इन दोनों में ऑलमोस्ट इक्वल है बिकॉज ऑफ लो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. The large difference in the boiling point of the alcohol and ether is due to the presence of hydrogen bonding in the alcohol as we discussed. But अगर दोस्तों water solubility की बात करें almost similar होगा. Suppose this is RONH. This is HOH. Again ROH. Then HOH. दोस्तों यहाँ पे intermolecular hydrogen bond हो सकता है. कहाँ पे बात कर रहे हो? ईथर और H2 की. एट द सेम टाइम सपोज दिस इज ईथर. अगर दोस्तों यहाँ पे फिर से किसकी बात करें? ईथर की. ROR. दिस इज ईथर एंड उसके साथ यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो HOH. फिर से ROR देन HOH. यहाँ पे भी फिर से वही उसी तरह के दोस्तों H बॉन्ड बन सकते हैं. So H bond are equal in the even in the alcohol. This is ROH. I repeat ROH, which is alcohol, and this is ROR, which is ether. So अगर internal H bond की बात करें अल्कोहल में पॉसिबल है, जो हमने देखा था. ether में पॉसिबल नहीं है. But H bond with the H2O, you can see this is ether and this is H2O is possible, similar to the alcohol. So अगर दोस्तों solubility की बात करें, water solubility की, then ether and alcohol are almost equal. So you can see the miscibility. Actually liquid के अंदर liquid को solubility जगह miscibility, miscible और immiscible वर्ड यूज करते हैं. अगर एक दूसरे में 100% मिक्स हो जाता है then miscible, अगर नहीं होते then immiscible. अगर हाफ होते हैं then सेमी मिसिबल कह सकते हैं, partially miscible कह सकते हैं. So miscibility I mean to say liquid into liquid of ether with water resemble those of alcohol of the same molecular mass. So alcohol से इक्वल है. क्यों इक्वल है मैंने दोस्तों आपको यहाँ पे बता दिया. Both ethoxyethane and butane 1 all are miscible to almost the same content extent. Almost कितने कितना वहां पे क्वांटिटी soluble हो सकती है? Almost equal 7.5 and 9 ग्राम per 100 ml of water. अगर एक का 7.9 ग्राम होता है then दूसरे का 9 ग्राम. तो अल्कोहल का कुछ हद तक ज्यादा ऑलमोस्ट इक्वल कंपैरेटिवली. अगर माइनर बात करें दोस्तों कुछ हद तक कौन ज्यादा हो सकता है? अल्कोहल इन कंपैरिजन टू ईथर. सो ethoxyethane 7.5 gram. At the same time butane 1 is 9 gram per 100 ml water solubility is there respectively, while pentane is essentially immiscible with water. ये दोनों अल्कोहल भी सोल्यूबल है, ईथर भी सोल्यूबल है. बट यहाँ पे नॉर्मल पेंटेन की बात करें CH3 CH2 CH2 आगे दोस्तों में देखा था वही है जिसका मोलेक्युलर वेट ऑलमोस्ट नियर है. आई रिपीट मोलेक्युलर वेट कितना है? ऑलमोस्ट नियरेस्ट. किसके? इन दोनों के. फिर भी ये टोटली इमिसिबल है. आई रिपीट टोटली इमिसिबल. क्यों? बिकॉज देयर इज लैक ऑफ इंटरमोलेक्युलर H बॉन्ड. जो अल्कोहल में H2O के साथ बन सकता है, ईथर में H2O के साथ बन सकता है, बट एल्केन का H2O के साथ नहीं बन सकता. दैट्स व्हाई दे आर फ्लोरीमिसिबल. कैन यू एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन? क्यों हो सकता है? क्वेश्चन मार्क. ये क्वेश्चन मार्क का आंसर दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है. दिस क्वेश्चन मार्क इज बिकॉज ऑफ, आई रिपीट दिस क्वेश्चन मार्क इज because of lack of intermolecular H bond. This is due to the fact that just like alcohol, oxygen of ether can also form a hydrogen bond with the water molecular as shown. दोस्तों जो मैंने यहाँ पे आपको बताया आपके लिए फिर से भी एक बार दे रखा है. You can see this is ROR, this is ether, this is H2O and this is given H bond जो अल्कोहल में भी बनता था वो ईथर में भी बन रहा है. क्लियर है दोस्तों? फिर से ये टॉपिक्स से रिलेटेड अगर कुछ एमसीक्यू निकल के आते हैं तो आपको पता होना चाहिए.
अभी के लिए दोस्तों नोट ऑफ पार्ट ऑफ द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर्टिकुलर फॉर दिस ईयर ओनली। एंड केमिकल प्रॉपर्टी, इन दी केमिकल प्रॉपर्टी दोस्तों हम इसको टू टाइप में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज आर ओ आर, एक्चुअली इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, आर CH2O CH2R, दिस R become H also, और कार्बन चेन भी हो सकती है। यहाँ पे दोस्तों ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, ऑक्सीजन कार्बन, या फिर ये होगा दोनों में से। दोनों बॉन्ड एक्चुअली कौन से है, कार्बन ऑक्सीजन। सो देयर आर सम रिएक्शन ड्यू टू कार्बन ऑक्सीजन क्लीवेज। ये दोस्तों एनसीईआरटी पोर्शन है, रिपीट, ये एनसीईआरटी का पोर्शन है, राइटिंग क्वेश्चन आ सकते हैं। सेकंड इज, अगर हमारे पास इस तरह के है, रिपीट, कुछ इस तरह का दोस्तों ईथर है, दिस इज एरोमेटिक रिंग एंड OCH। सो यहाँ पे आप रिएक्ट करते हो तो एंड इन दी एरोमेटिक रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। सो दैट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हो सकता है, वो दोस्तों उनको पढ़ना है, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, बट पर्टिकुलर फॉर दिस ईयर आपको ये एनसीईआरटी एग्जाम के लिए याद नहीं रखना है। सो लेट्स गो विद द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। अगर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इथर में ब्रेक होता है तो क्या रिएक्शन हो सकती है। अगर दोस्तों रिएक्टिविटी की बात करें, अगर इसके हम कंपैरिजन करें अल्कोहल से या फिर एनी अदर रिएक्टिव ग्रुप से, सो इथर इज ऑलमोस्ट सबसे दोस्तों कम रिएक्टिव होगा। इवन आपको पता होगा इन दी IUPAC नोमेनक्लेचर इथर को प्रायोरिटी लास्ट नंबर पे, सम ऑफ द लास्ट नंबर्स पे देते हैं बिकॉज ऑफ लेस रिएक्टिविटी। here कार्बन ऑक्सीजन कार्बन पोलैरिटी इज देयर, बट एज वेल एज उसके साथ दोस्तों ये कार्बन चेन भी है जो पोलैरिटी को क्या करती है, डिक्रीज करती है। सो इसकी रिएक्टिविटी कम है, अल्कोहल की कंपैरिजन में बहुत ही कम रिएक्शन मिलेगी, बट फिर भी कार्बन ऑक्सीजन की वजह से कुछ रिएक्शंस पॉसिबल है दैट वी आर गोइंग टू लर्न। Ether are the least reactive of the functional group, कम reactive। The cleavage of carbon-oxygen bond in ether take place under drastic conditions with excess of hydrogen halide। एकदम extreme condition में दोस्तों in presence of HX, yes, this bond is possible, bond cleavage is possible। The reaction of dialkyl ether gives two alkyl halides। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, सपोज हमारे पास ROR ईथर है, ROR डैश, देन HX के साथ एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में, ड्रास्टिक कंडीशन में अगर इसकी एक्सेस ऑफ HX के साथ रिएक्ट करते हैं, देन ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होकर दोनों के साथ एक साथ क्या मिल सकते हैं, 2 मोल ऑफ एलो अल्केन मिल सकते हैं। यू कैन सी फर्स्ट ईथर विथ HX, सपोज ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे क्या आएगा H, सो दिस RO बिकम ROH। सेकंड R के साथ क्या आएगा X, एलो अल्केन। ये हुआ ईथर का 1 मोल HX है, कम क्वांटिटी में। उसके बाद दोस्तों इसको साइड आउट कर दो, this alcohol become reactant again, you can see this is alcohol react with 1 more HX, and you can see वैसे दोस्तों क्या होगा, यहाँ से रिप्लेसमेंट होगा OH और H का, you get H2O and X with the R, so finally 2RX। यार अगर दोस्तों ये रिएक्शन को आपको ठीक से लिखना है, रिपीट दोस्तों, अगर ये रिएक्शन को आपको फिर से पूरा लिखना है, देन यू कैन राइट, क्या करते हो आप, ये पूरा रिएक्शन का सम लेंगे, ROR HX here RX ROH। दोस्तों जो दोनों तरफ इक्वल है उसको कैंसिल कर देते हैं, ओके, कैंसिल हो जाएगा, आपके सामने क्लियरली दिख रहा है दोस्तों। देन प्रोडक्ट क्या होगी, दिस इज ईथर ROR, then HX plus HX, 2 hydrogen halide gives 2RX, 2RX plus H2, वही हुआ जो मैंने बात की थी दोस्तों। सो इस तरह की रिएक्शंस पॉसिबल है। सपोज सिमेट्रिकल ईथर इज देयर, आई रिपीट, इफ सिमेट्रिकल ईथर इज देयर, R and R dash is equal, then not a problem, कोई भी बॉन्ड पहले टूटे, at the end आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी which is RX and R dash X, both are equal because both carbon chain is similar, symmetrical ether। but अगर asymmetrical ether है दोस्तों, दोनों में से किसी एक कार्बन चेन बड़ी है, एक छोटी है, या फिर मिक्स ईथर है, वन ऑफ द चेन इज एरोमेटिक, वन इज एलिफेटिक, तब क्या हो सकता है, ये दोस्तों ठीक से पढ़ना है, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए।
Alkyl aryl ether, you can see this is alkyl chain, this is aryl chain. Alkyl aryl ether are cleavage at the alkyl oxygen bond due to the more stability of aryl oxygen bond. तो दोस्तों इस तरह का कंपाउंड है which is alkyl and aryl, तब यही बॉन्ड क्लीवेज पहले होगा बिकॉज यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन R इज एक्चुअली, अपने यहाँ पे दोस्तों को एक एग्जांपल के साथ दिखा रहा हूँ. सपोज दिस इज बेंजीन रिंग, देन O and this is CH3. दिस इज आवर एनिसोन. यहाँ पे भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, यहाँ पे भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, but somehow this carbon oxygen bond is less stable in comparison to this one because of resonance, because of hybridization of this carbon. ये दोनों रीजन जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है इन दी एलॉय. सो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, we will get CH3X and C6H5OH फिनोल मिलेगा. ये you can see R के साथ एलोजन RX, H is joined to the phenoxide and we will get phenol. ओके सो फाइनली दोस्तों फिर से यही बात, अगर एल्काइल एराइल ईथर है यही बॉन्ड टूटेगा एल्काइल कार्बन और ऑक्सीजन का बिकॉज ऑफ ये ज्यादा स्टेबल है. इसके रीजन हो सकते हैं, अगेन वी डिस्कस रेजोनेंस एंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन व्हिच इज sp2. सो ये जल्दी से ब्रेक डाउन नहीं होगी, हमको मिलेगा फिनोल एंड द एलो अल्केन. यहाँ पे दोस्तों जैसे ROR में से एल्काइल ईथर में से ये एल्कोहल बना, तो फिर से हमको एलो अल्केन मिलता है, यहाँ पे नहीं होगा, ये फिनोल पे आके रिएक्शन एंड हो जाएगी बिकॉज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन फिनोल इज समहाउ जल्दी से दोस्तों नहीं हो सकता इतनी इजीली, उसके लिए आपको कुछ हद तक आगे बढ़ना पड़ता है. सो यहाँ पे फिनोल पे एंड हो जाएगा. ओके देन ईथर विथ टू डिफरेंट एल्काइल ग्रुप, ये यू कैन से दो अलग अलग एल्काइल ग्रुप are also cleavage in the same manner. तब दोस्तों एल्काइल ग्रुप ही है तो क्या होगा, दोनों में से किसी एक ग्रुप में पहले क्लीवेज होगा, we'll get RX and R-OH. तो यहाँ पे फिर से दोस्तों उसकी रिएक्शन HX से होगी, हमको क्या मिलेगा RX plus H2O. अगर HX की बात करें हाइड्रोजन हैलाइड की, which hydrogen halide is more suitable? You can see HI hydroiodide is more suitable than HBr than HCl. यहाँ पे हाइड्रोआयोडाइड क्यों ज्यादा पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड लेयर, ये जल्दी से ब्रेक डाउन को होके I- बन सकता है एंड I- इज वन ऑफ द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल एवर. अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके किसी के साथ एडजस्ट हो सकता है. ठीक है, the cleavage of ether take place with the concentrated HI or HBr at high temperature. I repeat, the cleavage of ether can take place with concentrated HI or HBr at high temperature. However, when one of the alkyl group is tertiary group and second is normal, यहाँ पे दोस्तों पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है. However, when the one of the alkyl group is tertiary, एक tertiary है दोस्तों, second is normal 1 degree, तब क्या हो सकता है, tertiary halide फॉर्म हो सकता है. You can see this is oxygen, this is 1 degree और normal carbon chain, this is 3 degree carbon chain. तब यहाँ पे दोस्तों बॉन्ड ब्रेक होके क्या बन सकता है, यहाँ पे आयोडीन हो सकता है and you will get product like this CH3C CH3CH3 iodoalkane and here you can see CH3OH methanol. ठीक है, फिर आगे दोस्तों यहाँ पे भी फिर से रिप्लेसमेंट होगा एंड यू विल गेट CH3X. बस फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट दिस प्रोडक्ट. यहाँ पे दोस्तों कुछ और एग्जांपल है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, उसके बाद मैकेनिज्म देखेंगे रिएक्शन किस तरह से होती है. इट इज बिकॉज इन टू स्टेप रिएक्शन the departure of the living group CH3OH creates more stable cation CH3C plus and the reaction follows S1 mechanism. दोस्तों ये रिएक्शन में यही प्रोडक्ट क्यों मिलती है, सो ये प्रोडक्ट मिलने का रीजन आपके सामने, ये कैन सी. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, ये ईथर किसी प्रोटॉन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस तरह का प्रोटोनरी ईथर बनेगा. पूरा मैकेनिज्म अभी आपको बता दूं. वो बनने के बाद अगर यहाँ से अल्कोहल निकला जो केटायन बनेगा दिस इज 3 डिग्री और आपको पता है वो मोर स्टेबल है, SF1 मैकेनिज्म फॉलो करें. अगर दोस्तों यहाँ पे सिमिलर रिएक्शन होती तो ऑक्सीजन विद दिस टर्सरी कार्बन ग्रुप के साथ अगर रहता तो क्या होता,
CH3 प्लस मिथाइल केटन बनता है जो हाईली अनस्टेबल था, दैट्स व्हाई यहाँ पे 3 डिग्री मिलता है। एक बार दोस्तों केटन बना, देन वी नो I माइनस इज दिस one of the best nucleophile attached to the carbocation and we will get iodoalkane. So in case of anisole, अगर दोस्तों anisole रहा, ये अलग कंडीशन हुई, anisole is benzene ring and OCH3. This is the case of the anisole. इसके लिए दोस्तों ये मैकेनिज्म दे रखी है। In case of anisole, methyl phenyl oxonium ion CH3C6O plus CH3OH ये बनेगा, is formed by the protonation of the ether. The bond between OCH3 is weaker than bond between OC6H1. ये बॉन्ड दोस्तों वीक है किसकी कंपैरिजन में, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन की कंपैरिजन में। रीजन हमको मालूम है। सो कार्बन ऑफ फिनाइल ग्रुप इज sp2 hybridized as well as resonance is there. Because of that resonance partial dual character बनेगा sp2 and the resonance की वजह से, so वो ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। तो क्या होगा उसकी वजह से दोस्तों, therefore I minus attacks to the OCH3 दोस्तों, और वहां पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और उसके साथ आयोडीन आके हमको मिलेगा CH3I। फिनोल डू नॉट रिएक्ट फर्दर, फिनोल की आगे रिएक्शन नहीं होगी जैसे अल्कोहल की हो सकती है, बिकॉज ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज एंड दी रेजोनेंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा दोस्तों इजीली। सो ये रिएक्शन अगर मेरे को फुलफिल करनी है मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, सपोज दिस इज बेंजीन OCH3, so this is anisole. Now in the anisole if we going to react with HI, यही दोस्तों रिएक्शन होगी, you will get phenol and the CH3I। ये रिएक्शन आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं की जा सकती। अभी ये सभी रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या हो सकती है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। यहाँ पे दोस्तों मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होगी, समझने के लिए आपको याद रखना है, राइटिंग के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा बट फिर भी देख लेना है। सपोज ये मैकेनिज्म दोस्तों कुछ इस तरह से होगी, यहाँ पे एक्चुअली स्टेप 4 हो सकते हैं बट एनसीईआरटी में 3 स्टेप में इसको दिखाया गया, सो मैं भी इसको 3 स्टेप में कंप्लीट करने की ट्राई करूंगा। स्टेप 1 क्या होगा दोस्तों, सपोज दिस इज आवर ईथर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, इस 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ दी ऑक्सीजन, यहाँ से क्या होगा दोस्तों, प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा। ये H प्लस कहाँ से आएगा, ये H प्लस एक्चुअली दोस्तों हमको कहाँ से मिलेगा, इसका सोर्स में लिख रहा हूँ H प्लस एंड I माइनस, HI से आएगा, हाइड्रोआयोडिक एसिड्स। सो we will get ROR only one lone pair and H, this is protonated ether। मैंने यहाँ पे दोस्तों लिखा नहीं, आपको समझ जाना है, this is protonated ether, this is step 1। then step 2, we can see what is being done in the step 2, carbon chain oxygen R, one lone pair H and the proton। यहाँ पे दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेके डीप्रोटोनेशन होगा और हमको क्या मिलेगा, क्या मिल सकता है एक्चुअली, यहाँ पे दोस्तों एक्चुअली हमको मिल सकता है ROH। बट जब भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन जनरेट होगा उसके ऊपर दोस्तों रेडीली जल्दी से अटैक करने के लिए कोई प्रिपेयर है, विच इज I माइनस, वन ऑफ द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, दिस बॉन्ड स्टार्ट टू ब्रेकिंग, यहाँ पे नया बॉन्ड फॉर्मेट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको दोस्तों इस तरह का एक सिमिलर प्रोडक्ट मिलेगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कह सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज RNH। सो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एट द सेम टाइम ये फॉर्मेट हो रहा है, एट द एंड ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, you will get ROH, R-OH actually, and इसके साथ आपको मिलेगा RI, that is your reaction। अभी दोस्तों ये स्टेप 2 के बाद स्टेप 3, स्टेप 3 में एक्चुअली 2 स्टेप हो सकते हैं, स्टेप 4 वाली रिएक्शन हो सकती है बस, और यहाँ पे ये रिएक्शन हुई SN2 मेजॉरिटी केस में, कब SN1 भी हो सकती है वो दोस्तों मैंने अभी आपको बता दिया था, वन ऑफ द कार्बन इज टर्सरी, वन इज प्राइमरी, तब ये SN1 भी हो सकती है, हमने देखा। ओके, नाउ ये अल्कोहल का टाइम आएगा
दोस्तों ये अल्कोहल में फिर से 2 lone pair H plus from the HI. This oxygen will going to donate the electron. You will get protonated alcohol. This is protonated alcohol. तो अभी दोस्तों ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल में यहीं पे सेकंड स्टेप बता दिया इन लोगों ने क्या करा है, OH and H, यहाँ पे ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा और आयन I माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा. You will get Ri plus H2O. So step 1, step 2, step 3, actually step 3 में 0.1, step 3 में 0.2 ये होना चाहिए, but as per as NCERT. So अभी दोस्तों पता चला how this reaction is possible. Which reaction? Bond cleavage of the carbon oxygen in the ether with the hydroiodic acid, hydrobromic acid, hydrochloric acid, 3 of them. दोस्तों हाइड्रोआयोडिक एसिड इज मोर सुटेबल, ये सबसे ज्यादा सुटेबल है. सो यही रिएक्शन मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ. You can see ether HX RX ROH then again HX RX plus H2. ठीक है. सो एनसीईआरटी पोर्शन दोस्तों आज के लेक्चर में देखा है. आई होप सबको समझ में आया होगा. नेक्स्ट पोर्शन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दी नेक्स्ट लेक्चर. देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए.